Hello, all. I hope you all are well. Let's go to our second question for UPSC mains answer writing series. First of all, you while reading the question, you have to highlight the main keywords, as I have already told you in the previous session also. Fine, and you have to read the question at least twice. At least twice. Okay. Fine. So now what is the question? Is it a good idea to privatize even the profit making public sector enterprise? Give reason to support your answer. Okay. So the main thing it is saying ki gives reason to support your answer. It is asking from us only, is it a good idea? Is it a good idea? Okay, to privatize even the profit making public sector. So if you say it's a bad idea, then you have to give this reason to support your answer. If you're saying it is a good idea, again you have to give reason for the same. Now, but you won't have to go extreme, about the question. The reason being, see, there is some good thing in that and there is some flaws in that. Correct. So you have to write a balanced answer. If the question is saying criticize the policy of privatization of the profit making public sector enterprises, then you have to criticize. But here it is asking you, is it a good idea? So it is asking from us. So we have to approach in that particular way only. Okay, so I hope it is clear. Again, it's a 15 mark question, so you can spend uh, 10 minutes, not more than that. So again, 10 minutes is always, you there is a limit of time. You have to think in a way so that your introduction, your body and conclusion, should be completed within 10 minutes. Clear? Okay, so now let's start. So first of all, it is asking about good idea and all. So the recently, now it's up to you how you will start your answer, and you have to make sure like you won't go for just writing the answer for hours and hours and hours. People used to take the help of Google or many things, and they used to write the answer in 1 hour. You don't have to, just practice the answer, and while writing you will come to know, okay, like these particular things are missing. Fine. So recently, there have been a change in disinvestment policy for central public sector enterprises. So recently, we have seen all those things. So we can start like that also, or it depends. It depends on you. I'm not saying that this is the only answer which you can write, but I'm just saying you the approach, and that's why in means answer writing, everyone has their own approach. Correct, but there should be some introduction. Okay, so central public sector enterprises allowing for strategic disinvestment. Yeah, okay. So these things should be underlined. Strategic disinvestment in profit making like BPCL, Shipping Corporation of India, etc. Now see, disinvestment is not a new process. Like it is in like every government since last 3 4 5 decades are using the disinvestment process. But here the word is coming like, is it a good idea to privatize even the profit making public sector? Correct, even the profit. Hence I have started like recently there has been a change in the disinvestment policy for central public sector enterprises, allowing for strategic disinvestment in profit making companies. And I have given some example like BPCL, Shipping Corporation of India, and etc. I hope it is clear. Now, yeah, this cut and should not happen because it won't it is not good. But definitely, if we are writing on our own, so such kind of mistakes can happen. Okay, so you won't have to discertain about it. You just have to continue because you won't have much time to think all those things. Fine. So facts. So again, see again what I have like I was doing the mistake. I was talking like about favor and all. Again, is it a good idea to privatize? Because when you are started answer writing, you won't know, like you won't have all those point exact word by word in your mind. Okay, so that's why I cut it. So no, I should not go for favor and all. So like facts regarding privatization of PSU. So I played a safe a bit.
Okay, so one is LPG reform. So keeping in the line of LPG reform, disinvestment target has been raised so as to allow private player more space for investment. For example, like for the financial year target was 40 crore, but now 1920 it is 19,000 crore. Reason being, say, if the government will allow to invest in PSU, see, PSU is the very big thing like BHEL, NTPC, and all those things. So it's small, like the person like you and me can't, directly make a company, big company like BPCL and others. Correct. If we are a very big company like Tata, Ambani, Adani, that is a different thing. So you can at least take some share of it. Like suppose if you are a good investors and you have the good amount of money, then you can at least purchase the share of it. Okay, and by purchasing the share, you will provide the money to the government, and they can use it for further, either for further development or for any other things. Okay, so again, now the second point here, to plug fiscal deficit to 2.5% by 23, which can be achieved through disinvestment. Again, it is one of the flaw also, because you are using these disinvestment to plug fiscal deficit, which can be achieved through disinvestment. You are not utilizing this money to again invest something which will create asset for the government. Clear? So now most PSUs are making losses, yes, and are funded by taxpayers, definitely. So the public resource spent on them could be better utilized. अब ये बात होती है, सिर्फ यही नहीं है कि आपका प्रॉफिट मेकिंग ही जो सेक्टर है उसे ही सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, जो लॉस मेकिंग भी उसे भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऑब्वियसली बात है टैक्स पेयर्स बनी है। अब तो वहाँ पे वही बात चल रही है कि हेंस प्राइवेटाइजेशन वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन डिसइन्वेस्टमेंट, बिकॉज लॉस मेकिंग यूनिट डोंट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इजली। अब क्योंकि ये लॉस मेकिंग है तो इसको अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो प्राइवेटाइज करने से एक तो ये फायदा हो जाएगा कि सी अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। सी डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सपोज कि दिस इज BHEL, okay, this is BHEL and government has the 90% of stake. Suppose the central government has the 90% of stake and it is diluting the stake to 80%. अब ये क्या बोल रहे हैं कि 10% जो है कोई भी ले ले, कोई भी कंपनी आके ले ले, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, 10% आप ले लो, उसके बदले जो है हमें सपोज करिए 1000 करोड़ दे दो। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑनर कौन है? ऑनर अभी भी गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, ठीक है, उनका स्टेक डाइल्यूट हो गया 90 से 80। बट प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि अब सपोज करिए कि BSNL है, अब नाउ इट्स अ वेरी लॉस मेकिंग कंपनी, तो ये बोल दिया यार BSNL को कि अभी सबसे ज़्यादा कौन चल रहा है, सपोज करिए कि जियो चल रहा है, जियो को ये पूरा का पूरा स्टेक जो है, मान लीजिए अभी गवर्नमेंट के पास 80% था, बाकी शेयर होल्डर्स के पास, इनने पूरा 80% जो जियो को ट्रांसफर कर दिया, उसके बदले सपोज करिए 1 लाख करोड़ ले लिया, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस। तो यही तो वही बात चल रही है कि हेस प्राइवेटाइजेशन वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन डिसइन्वेस्टमेंट, बिकॉज लॉस मेकिंग यूनिट डोंट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इजली। क्योंकि ऐसे आपका शेयर कौन खरीदना चाहेगा? आप ऐसे लॉस मेकिंग है, तो कंपनी ही आप बेच दो, तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद द प्रॉब्लम इन डिसइन्वेस्टमेंट इज दैट इट डज नॉट इंश्योर अ चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। अब यहाँ पे वही बात चल रही है कि प्राइवेटाइज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डज नॉट इंश्योर अ चेंज, बिकॉज इट डज नॉट इंश्योर अ चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। सी अब यहाँ से 90% जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल दिया, अब वहाँ से 10% जो है आपने किसी और को प्राइवेट कंपनी को दे दिया, बट हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो वही के वही है, क्योंकि अभी भी जो मेजोरिटी के लिए कितना होना चाहिए, 51% से ऊपर स्टेक होना चाहिए, अभी भी 90 से 80 ही हुआ है। डिसइन्वेस्टमेंट किया, सब मैनेजमेंट हुई है, बस गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया।
तो बस इससे क्या दिक्कत हुई कि मैनेजमेंट वही का वही है, पुअर का पुअर ही है, अगर मान लीजिए लॉस मेकिंग है तो वही वाली बात हो रही है कि इट डज नॉट इंश्योर अ चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज टू मेक PSU एफिशिएंट. ओके, देयर इज अ नीड टू ब्रिंग प्राइवेट मैनेजमेंट फॉर मैक्सिमाइजिंग इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. जिससे भी आप TCS का एग्जाम्पल देखिए, है ना, कि जैसे कि कंपनियां हैं, जैसे पहले टाटा के अंदर टाटा एयरलाइंस थी, प्रॉफिट में चलती थी, आज वापस खरीद लिया है. लेकिन एयर इंडिया जब गवर्नमेंट के अंदर आई तो अभी भी पता कितने इश्यूज हुए, कितना लॉस उन्हें झेलना पड़ा. ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें इफिशियंसी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी पे वो वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब इसके बाद अगर हम कंक्लूजन बेस्ड बात करें, ठीक है, कुछ चैलेंजेस हम और देख लेते हैं, फिर हम कंक्लूजन बेस्ड बात करेंगे. देखिए चैलेंजेस क्या है कि गवर्नमेंट हैज मोस्टली यूज्ड इट फिस्कल रीजन देन रेदर देन ग्रोथ ऑब्जेक्टिव टू कवर द फिस्कल डेफिसिट. अब देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये जो पैसा लिया वो तो बोल रही है कि हम इसको जो है 2.5 कर देंगे फिस्कल डेफिसिट को. ठीक है, लेकिन अब मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए आपको 1 लाख करोड़ मिले, तो आप जो है अगर कोई कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं या प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो उसकी जगह आप दूसरी कंपनी खड़ी करें. आज उसमें 1000 करोड़ मान लीजिए आप इन्वेस्ट करेंगे, कल हो कि 1 लाख करोड़ की हो जाएगी. सो अगेन इट्स अ चैलेंज. चैलेंज क्या क्या है कि गवर्नमेंट हैज मोस्टली यूज्ड इट फॉर फिस्कल रीजन. मीन्स क्या हो रहा है, इंडिया में अभी जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हाई है और जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है वो लो है. तो बीच में जिसके कारण जो डेफिसिट आ जा रहा है, अब क्या कर रहे हैं, इसका प्राइवेटाइजेशन करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके वो हम डेफिसिट को भर रहे हैं. बट ये जो है कंसर्न है, बहुत बड़ा चैलेंज है. क्योंकि सपोज करिए आज आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, BHEL है, LIC को भी आपने देखा होगा, अभी इसमें बड़ी बड़ी ये भी कंपनीज है. ठीक है, तो ये कंपनी आपको लाखों करोड़ों देंगे, लेकिन अगर आप सबको प्राइवेटाइज कर देंगे सिर्फ ये फिस्कल डेफिसिट भरने के लिए, तो अब आपके पास कोई बड़ी कंपनी बचेगी ही नहीं. तो फ्यूचर में आप क्या करिएगा. ठीक है, और दूसरी बात, अगर अभी ये मान लीजिए ये कंपनी आपको 5 लाख करोड़ दे रही है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप 10-10 हज़ार करोड़ करके नए नए स्टार्टअप्स या फिर मतलब गवर्नमेंट ने जैसे ये सब चालू किए थे, अलग अलग सेक्टर में जाए, चिप्स बनाए, सोलर पैनल बनाए, कुछ भी इंडस्ट्री इस तरीके से खड़ी करे. ठीक है, तो ये फिर जो 10-10 करोड़ में आज जो मतलब कि 100 करोड़ 10 करोड़ जो भी एक लागत लग रही है, 1000 करोड़, अगर वो कंपनी इससे जो पैसा आ रहा है मान लीजिए 5 लाख करोड़, उस पर अगर वो 10 ऐसे अलग अलग कंपनी चालू कर दे, ऑब्वियस ये बात है गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा ही. तो कल हो कि वो हो सकता है वो कंपनियां 10-10 लाख की 10 कंपनियां और बन जाए, तभी फायदा है ना कि ये कंपनी को तो मैंने LIC को तो अच्छा बना दिया, अभी प्राइवेटाइज होगी, चलती रहेगी. अब अगर मान लीजिए हम रिसर्च में बुरे हैं तो हम वहाँ के कुछ चालू करें, हम AI में बुरे हैं हम वहाँ का चालू करें. तो ये चीज़ें होनी चाहिए. हम ये फिस्कल जो रीजंस के लिए हम ये काम कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट को भरने के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है. यहाँ पे वो चैलेंज भी लिखा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की क्या मांग थी कि भाई गुड आइडिया है या नहीं, तो भाई फैक्ट तो बता दिया उसके बारे में, अब चैलेंज भी बता दिया उसके बारे में. तो प्रोसेस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोशल डिसएडवांटेज्ड पीपल. अब ये क्यों कहा जा रहा है, जो प्रोसेस है, देखिए आप कोई भी चीज़ को अगर प्राइवेटाइज करोगे, ऑब्वियस सी बात है उनका मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. ये ठीक है, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उसके बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी भी वर्ड है. तो अब जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड आएगा वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो सोशल वेलफेयर तो नहीं रह जाएगा उसके बाद. ठीक है, तो प्रोसेस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल. ठीक है, इसके बाद प्राइवेट सेक्टर गवर्न्ड बाय प्रॉफिट मोटिव हैज अ टेंडेंसी टू यूज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो सकती है ताकि सैलरी कम देनी पड़े, और अगर आपको इफिशियंसी बढ़ानी है किसी चीज़ की तो ऑब्वियस ही बात है उसका मैकेनाइजेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे, तो विच कैन वर्सन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया. तो आपने देखिए कितने इंपॉर्टेंट सेक्टर टिक मार्क कर दिए हैं यहाँ पे. अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, अपने कैपिटल इंटेंसिव की बात की, अपने प्रॉफिट ड्रिवन की बात की, आपने बताया कि वो डिसएडवांटेज पीपल के लिए सोशली सही नहीं है, आपने ये फिस्कल डेफिसिट की बात की. ठीक है, आपने मतलब इधर प्रॉपर LPG रिफॉर्म से रिलेटेड ही बताया कि अभी कितने का टारगेट है, वो टारगेट से हम क्या करना चाह रहे हैं, आपने उस पर बात की. ठीक है, आपने मतलब एक तरीके से क्लियर किया कि डिसइन्वेस्टमेंट से अच्छा प्राइवेटाइजेशन क्यों है. तो आपने पूरा हॉलिस्टिक वे में लेके गए. आपने ये बताया कि पहले डिसइन्वेस्टमेंट होते रहते, अभी प्रॉफिट वालों को भी करने लगे हैं. ठीक है, इसको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नाम दे दिया. तो बस यहाँ पे जो एक वर्ड चल रहा है वो प्राइवेटाइज है. तो अब देखिए अगर प्राइवेटाइज वर्ड और डिसइन्वेस्टमेंट
मतलब इस तरीके से कितना आंसर में चेंज आ सकता है, ठीक है, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा है उससे। चलिए इसके बाद अब देखते हैं कि अब एक प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइवेटाइजेशन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन फॉर अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल। अब क्यों ये बात यहाँ पे लिखी है मैंने, देखिए हमें लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या है यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट जो है हम भर दें, लेकिन इससे आपको ये पैसा अगर आप और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, आप और कंपनीज बनाने के, PSUs और नए नए बनाने के लिए यूज़ करते, वो एक लॉन्ग टर्म विज़न होता कि अगर मान लीजिए अभी हम सपोज करिए कि रिसर्च के लिए एक ओपन कर दें कि हाइड्रोजन फ्यूल का कैसे कैसे ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं, ठीक है, ताकि क्लाइमेट चेंज पे उसका मतलब जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ना पड़े। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, वही है कि हम फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू अलग कर रहे हैं, तो वो तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक नई मतलब कंपनी ही डाल दे, PSU डाल दे कि जो लिथियम आयन बैटरीज बनाए बड़े लेवल पे, ठीक है, तो वो सब हम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट अभी हम क्या है, शॉर्ट टर्म जो है, तो प्राइवेटाइजेशन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिकल कंसिडरेशन फॉर अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद इवन इट इज done, some stakes should be diluted and allow private player in higher management although they have minimum stake in PSUs। देखिए उनको पहली बात है कि अगर ठीक है आप उनको दे भी रहे हैं, कुछ स्टेक्स दे रहे हैं, आप पूरा नहीं देना चाह रहे हैं मान लीजिए, है ना, हमने उसकी भी बात कर लिया, प्राइवेटाइजेशन तो छोड़िए, आप डिसइन्वेस्टमेंट भी करें, उनको चांस दे कि वो मैनेजमेंट में आए, ठीक है, ताकि वो भी सीखेंगे, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ है ना। एकदम से कोई बोल दे कि भी टाटा ने जैसे कि डिफेंस में लिया है, ऑब्वियसली टाटा जो है मोटर्स बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन डिफेंस उनके लिए एक नई चीज़ है। तो वहाँ पे उनको मैनेजमेंट जाए, उनका ट्रेनिंग ले, सीखें, तो वो इन्वॉल्वमेंट होगा। अदरवाइज क्या पैसिव वे में अगर आप बस पैसा लगा दिए किसी कंपनी में एक प्रॉफिट मोटिव से कि अब इसका शेयर बढ़ेगा और फिर मैं उसको बेचूंगा, तो इसमें कोई भला नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप आई होप सो कोई क्लियर हुआ होगा। तो आप भी जो है ये क्वेश्चन लिखें और आप इसका आंसर लिखें, आपको कहीं के पॉइंट्स की जरूरत पड़े तो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। एंड चलिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड डू कमेंट्स प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।